Hi everyone, welcome to English class. Today I'll be discussing grade 9 Beehive textbook, chapter number 7, Packing. Actually, this story is taken from the novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. So, moving on to this story. This story has three friends who had decided to pack their stuff as they have decided to go for a picnic. The name of the three friends are Jerome, George, and Harris. So you have to note that Jerome is the author. Okay, so Jerome, George, and Harris have planned to go for a picnic, right? Jerome thinks that he is the best person for the job. So what are they doing? Before going to a picnic, they are packing. They are packing their materials. So Jerome thinks that he is a very good person in packing. He suggests that he should do packing but is quite taken aback when his friends so easily agree with it. So he just suggested to his friends that I will do packing. तो उसने अपने फ्रेंड से बोला, जेरोम ने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं पैकिंग कर दूंगा और उसके फ्रेंड्स ने कहा हाँ हाँ यू कैन डू इट ओके सो ही वॉज टेकन बैक ही was little surprised when his friends so easily agree with it. Obviously, the suggestion was only a show off, but the fact that his friends so easily agreed upset him. ओके एक्चुअली उसने ये सब खुद करने के लिए नहीं कहा, ऐसे ही उसने कहा कि मैं कर दूंगा, तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि ओके यू कैन डू इट एंड दे डिड नॉट एंगेज देमसेल्फ इन पैकिंग. सो ये जेरोम को अच्छा नहीं लगा, वो अपसेट हो गया. George sat on easy chair while Harris kept his leg on the table. तो जॉर्ज और हैरिस क्या कर रहे हैं? They are very sitting comfortably. Okay, George is sitting in an easy chair and Harris is keeping his legs on the table and sitting comfortably. So, what is Jerome doing? He is doing packing. On the other hand, Jerome's only intention was to watch over them when they packed. एक्चुअली है ना, जेरोम ने क्या सोच के रखा था, ये लोग पैक करेंगे और मैं इनका वर्क सुपरवाइज करूंगा. मगर अभी क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है. जेरोम ही खुद अपने आप सब पैकिंग कर रहा है. He wanted to only point out the errors and fault but had no intention to do it himself. तो इसमें कहा है उसको एक्चुअली है ना, ये खुद करने का कुछ इंटेंशन नहीं था. फिर अभी क्या होगा, सब अपने सिर पर आ गया. ओके Actually, he wanted to point out the errors and fault of his friends, but now he is the only person who is engaged in packing. Okay, it is in fact quite funny that he says it is my energetic nature, I can't help it. On the contrary, his definition of hard work is to put his hand in his pocket and watch others do the work. तो वो एक्चुअली वो क्या चाहता है, दूसरे फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स जो काम करे वो वॉच करे, इतना ही वो चाहता है. मगर वो क्या बोलता है सभी के सामने, दैट ही इज़ वेरी एनर्जेटिक इन नेचर. ओके इसीलिए वो कुछ भी काम कर सकता है. ओके तो उसके मन की इंटेंशन कुछ और है और जो वो करता है वो कुछ और है. ओके अभी देखो आगे देखेंगे. He even tells a story about a man with whom he used to stay and he would watch Jerome do all the work. तो देखो वो अपने एक स्टोरी भी नरेट करके अपने फ्रेंड्स को बताता था कि एक मैन था जो जिसके पास वो स्टे करता था और वो आदमी क्या करता था, जेरोम को सारे काम कराता था और वो सिर्फ देखते ही रहता था. But anyways, he gets started with the job of packing and after packing, Harris tells him that he has forgotten to pack his boots. तो देखो अभी जेरोम ने कुछ भी हो वही पैकिंग सब कर रहा है. ही स्टार्टेड द पैकिंग जॉब एंड जब पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया ना तो हैरिस ने उसे बोला कि आई हैव फॉरगॉटन टू कीप माई बूट्स. उसने हैरिस ने अपने बूट्स रखने के लिए भूल गए. दिस इरिटेटेड जेरोम एज ही थॉट दैट Harris would have pointed that before he packed his bag. तो उसको जेरोम को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अपना सारा पैकिंग हो गया, अभी वो बूट्स के बारे में बता रहा है. So he did not feel very happy at that moment. He was little annoyed with Harris. Even George laughed and this irritated Jerome further. तो जॉर्ज भी ये सुनकर है ना हंसने लगा. Okay, he repacked the boots but this time
His own fear that he might forget his toothbrush scandalized him. तो देखो उसने क्या किया, अपना बूट सब पैक करके फिर दोबारा रखा उसमें। फिर उसे लगा कि अभी मैं ही भूल गया क्या मेरा टूथब्रश रखने के लिए, ऐसा उसको एक थिंकिंग आ गई। In fact, he was always troubled by the fact that he might forget about his toothbrush, and this time also he had the same fear. तो देखो इसको, जेरोम के मन में एक ऐसा फियर आ गई कि क्या मैंने अपने टूथब्रश रखने के लिए भूल गया, ऐसा सोचने लगा वो। और वो वही थिंक करके बैठ रहा था। He searched for it in the bag again, but it couldn't find it. तो उसने अपने टूथब्रश अगेन सर्च किया मगर वो नहीं मिला। सो ही टर्न्ड एवरीथिंग ओवर एंड फाइनली फाउंड इट इन ए बूट। तो देखो उसने क्या किया, उसने पूरे बैग अनपैक कर दिया और अपनी टूथब्रश उसे मिला एक बूट के अंदर से। He repacked everything and finally finished the packing at 10:05 p.m. तो उनकी सारी काम हो गई। पैकिंग फिर से किया, तो पहले पैक किया, फिर अनपैक किया, फिर पैक किया, फिर अनपैक किया। ऐसा सारा काम अभी लास्ट फिनिशिंग पैकिंग हो गया। तो अभी कितना टाइम बच गया, 10:05 हो गया था PM. Okay, but still food had to be packed. So when Harris offered to do it with George, and Jerome immediately agreed. तो देखो अभी फूड पैकिंग बाकी था, तो जब हैरिस ने बोला ना, हाँ ये मैं और जॉर्ज कर दूंगा, तो जेरोम ने जल्दी से वो एग्री किया और बोला कि हाँ हाँ तुम ही कर दो, ऐसे बोल दिया। Jerome very quietly sat to watch them, as he knew very well that they were lossy packers. तो देखो अभी जेरोम क्या कर रहा है, जेरोम अपना पैकिंग कंप्लीट करके वहाँ बैठ गया। तो हैरिस और जॉर्ज अभी क्या पैक कर रहे हैं, वो खाना पैक कर रहे हैं, राइट, फूड पैक कर रहे हैं। तो जेरोम वहाँ बैठकर इनको देख रहा है, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। As per Jerome's expectation, things soon got interesting. They broke a cup. तो देखो वो जेरोम जानता था इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर थे, जैसे कि दे ब्रोक ए कप, उन्होंने क्या किया, जॉर्ज और हैरिस ने एक कप को ब्रेक कर दिया। George stepped on the butter, then he removed it from his slipper and they tried to put it in a kettle but failed. तो बहुत ही ह्यूमरस थिंग्स हो रही है। जॉर्ज ने क्या किया, बटर पर अपना पैर रखा, फिर वो अपना स्लिपर रिमूव किया एंड फिर वो केटल पर रखने के लिए कोशिश किया, फिर सब फेल हो गया। सो ही स्क्रैप्ड इट आउट एंड केप्ट इट ऑन द चेयर बट हैरिस सैट ऑन इट। तो देखो अपना स्लीपर्स है ना, उसने क्या किया, वो रिमूव करके वो चेयर पर रखा और हैरिस उस पर बैठ गया। तो फुल्ली एक फनी सीन था। When they looked for it, they couldn't find it, but then George saw it on his back and finally they packed it in a teapot. अभी देखो वो बटर का है ना, बटर का अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और लास्ट में जॉर्ज ने कहा कि वो हैरिस के बैग में है, तो उन्होंने ये सब टी पॉट में पैक किया। All this while Montmorency, which was their dog, continued to be a trouble. तो देखो अभी ये लोगों की बारी नहीं, एक डॉग भी है उनके पास, उसका नाम है Montmorency, और वो भी उन्हें ट्रबल देने शुरू किया। He put his leg in the jam. He played with spoons and played with lemons as if they were rats. अभी क्या किया मॉन्टमोरेंसी डॉग ने, वो आकर है ना अपना लेग जैम के अंदर डाल दिया, उसके बाद वो स्पून्स और लेमन से खेलने लगा, एज इफ दे वर रैट्स, जैसे कि रैट को पकड़ने जाते हैं ना डॉग्स, उसी तरह वो भी खेलने लगा। क्या क्या यूज करके, स्पून्स एंड लेमन्स। हैरिस accused Jerome for encouraging him, but Jerome said a dog so notorious didn't require any encouragement. ओके तो देखो हैरिस ने कहा कि जेरोम ही ये सब एनकरेज कर रहा है डॉग को ऐसे सब करने के लिए। तो जेरोम ने कहा कि अरे ये डॉग इतना नोटोरियस है कि इसको कोई भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। Finally, when they finished packing at 12:50, George asked what time they would like to be woken up. So Jerome and Harris had an argument, but Harris wanted to get up at 7, but Jerome wanted to get up at 6. Finally, they decided at 6:30.
ओके, तो उनको सारी पैकिंग खत्म हो गई, तब टाइम क्या है? 12:50, सो अराउंड 1 o'clock। तो कितने बजे कल उठना है? जॉर्ज ने पूछा और जेरोम ने कहा कि हाँ, हम 6 बजे उठेंगे। हैरिस ने कहा नहीं नहीं, हम 7 बजे ही उठेंगे। फाइनली दे जस्ट मेड a compromise and they said that they will wake up at 6:30, but Jerome had slept before that, so they kept a tub with water near him so that he would end up slipping it in the moment he got up। और उन्होंने है ना सुबह करेक्ट टाइम पे उठने के लिए उनके पास एक टब में पानी भी रखा, और ताकि वो सुबह उठकर ही उसमें स्लिप होकर गिर जाएंगे और अपनी नींद से जाग जाएंगे। ऐसा सब सोचकर सब रेडी करके वो सो गए। Okay, so that is about this chapter, and this is a very funny chapter, children. In the whole textbook, this is the only funny chapter you can find, and this is taken from the novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. Okay, I hope this portion is clear for you. Thank you.